Method study is a technique which is very similar to the principle science not rule of thumb. That principle focused on the fact everything should be done scientifically by performing a proper method for every activity that you will perform in your business. So this method study also focuses on same criteria, that whatever activities you will be doing in your organization should follow a proper method. So now, sir, how is it different from science not rule of thumb? Now, science not rule of thumb is a principle that you should be applying. That's a general guideline, that whatever decision you will be taking, it should be scientific. It should have some logic rather than hit and trial method, that let's try out this method and let's see if it will work or not. So it's wrong. It's illogical. So science not rule of thumb is against this thing, that you are taking decisions non-scientifically and without any logic. But method study focuses on the fact that you should do some experiments. You should do some experiment to find out which method is the best for your business operations. So method study is a study of different types of methods which can be used to perform a single activity. Now let's suppose in your factory you manufacture stationery products. Now there are varieties of producing stationery products. कौन सा इनपुट पहले आपको डालना है मशीन में, कौन सा इनपुट आपको सेकेंड टाइम डालना है. तो देर इज अ वैरायटी कि आप सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हो, मशीन को आगे पीछे कर सकते हो, राइट. सो यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर मेथड विच विल सेव यू द मैक्सिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम टाइम. So method study focuses on finding out the best method for every activity by performing an experiment on the maximum activities you can. जितनी एक्टिविटीज़ में डिफरेंट मेथड्स लगाए जा सकते हैं, मेथड लगाओ और फिर आप ढूंढो कि कौन सा मेथड बेस्ट है हर एक एक्टिविटी को करने के लिए, उस मेथड को अप्लाई करो. दैट इज मेथड को स्टडी करना है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेथड स्टडी. तो टेलर ने ये फोकस करा कि आप अपनी फैक्ट्री में इस चीज़ को स्टडी करो कि हर एक एक्टिविटी को करने का बेस्ट मेथड क्या है और उस मेथड से स्टिक रहो, उससे आपको डेविएट नहीं करना. फिर वेयर एज जो इनका प्रिंसिपल था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वो कहता था हर एक चीज़ के लिए मेथड होना चाहिए, दैट्स इट. मेथड पे एक्सपेरिमेंट करने पे वो प्रिंसिपल फोकस नहीं करता. द प्रिंसिपल ओनली सजेस्ट यू दैट यू शुड फॉलो दिस गाइडलाइन और नॉट, इट्स अप टू यू. इट्स जस्ट अ सजेस्टिव प्रिंसिपल and this method study is also a suggestive technique, but the principle is a general guideline, that it's a general thing that you should be having a method for everything, and the principle ends there itself. But method study starts from there. Once you are clear that you are not applying a rule of thumb, you are not applying some illogical things, you are not applying some unscientific things, and the time you realize that you have to take decisions scientifically, logically, is the time you are starting with method study, that you are finding out which method is the most suitable one for your business activities. So you have to perform different methods for different activities differently. So the objective of method study is to find out which method is the best for you for doing any job. सो देर आर वेरियस मेथड फॉर डूइंग एनी जॉब. हर एक चीज़ को करने के बहुत तरीके होते हैं. तो ये तरीका ढूंढना कि सबसे बेस्ट कौन सा, उसमें आपको बहुत क्राइटेरिया रखने पड़ेंगे, सेवरल पैरामीटर्स रखने पड़ेंगे. तो रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, किस सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदना है, वो कैसी क्वालिटी हमें ऑफर कर रहा है, क्या प्राइस हमें वो कोट कर रहा है, एंड फाइनल प्रोडक्ट बनने तक हर एक चीज़ में आपको एक बेस्ट मेथड ढूंढना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री में, ताकि और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है. बट मेथड स्टडी का फोकस मेनली ये है कि कस्टमर तक जब तक प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाता तब तक आपको हर एक चीज़ का मेथड रखना है कि कस्टमर तक कैसे सामान पहुंचाया जाएगा. अब हम लोग थोड़ी फैक्ट्री में जाके सामान खरीदेंगे, हम लोग तो शॉप से जाके सामान खरीदेंगे ना. तो जब तक कस्टमर तक सामान नहीं पहुंच जाता तब तक के क्या मेथड्स रहेंगे, क्या स्टेप्स रहेंगे, दैट इज़ टू बी स्टडीड प्रॉपरली, राइट. तो टेलर ने कंसेप्ट फॉलो करा असेंबली लाइन का. असेंबली लाइन का मतलब ये होता है गाइस कि प्रोडक्शन की लाइन क्या होगी, पहले प्लास्टिक जाएगा, फिर आयरन जाएगा, फिर स्टील जाएगी. सो दिस इज असेंबली लाइन. एक लाइन में आपको प्रोडक्ट्स जो भी आपके रॉ मटेरियल्स होंगे वो आपको इनपुट करने हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट निकल के तैयार हो. तो इट इज़ जस्ट अ प्रोडक्शन लाइन. असेंबली लाइन का मतलब होता है प्रोडक्शन के स्टेप्स क्या होंगे, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज का यही है ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमाइज हो सके, बिकॉज एवरी पर्सन वांट्स कि उसकी फैक्ट्री में कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम लगे प्रोडक्शन की, और वो तभी लग पाएगी जब हर एक काम को करने का आपको बेस्ट मेथड पता होगा,
राइट। तो इस पर्पस के लिए टेलर ने कहा बहुत टेक्निक्स हैं, प्रोसेस स्टार्ट्स हैं, ऑपरेशन रिसर्च हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, मेथड स्टडी में डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको कार डिज़ाइन करनी है, अगर आपको कार बनानी है, अब कार बनाने के लिए एक असेंबली लाइन होती है कि सबसे पहले प्लास्टिक आप डालते हो, फिर उसमें आयरन जाता है, फिर उसमें स्टील जाता है, फिर कार का एक बेस तैयार होता है, फिर उसमें इंजन लगता है, फिर उसमें डोर लगाए जाते हैं, फिर उसमें साइड मिरर लगाए जाते हैं। तो ये एक सीक्वेंशियल स्टेप है जो फॉलो करना होता है आपको। हर एक कंपनी जो भी कार्स बनाती है, हुंडई, मारुति, होंडा, शेवरलेट, दे फॉलो अ डिफरेंट असेंबली लाइन, दे फॉलो अ डिफरेंट असेंबली लाइन, उनका प्रोडक्शन का स्टाइल अलग है, राइट। तो ये आपको स्टडी करना है कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्शन स्टाइल बेस्ट फॉलो करेगा, बेस्ट मेथड रहेगा, राइट। तो देयर शुड बी अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो भी काम होगा वो किस सीक्वेंस में होगा, कौन सा पर्सन किस मशीन में खड़ा, कहाँ खड़ा होगा, कौन सी मशीन कहाँ रखी जाएगी, कौन से रॉ मटेरियल्स कहाँ रखे जाएंगे। तो ये सब मेथड स्टडी का पार्ट है। तो आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं अपनी फैक्ट्री में कि कौन सा सामान कहाँ रखना है वो बेस्ट रहेगा, कौन सा पर्सन किस मशीन पे खड़ा होगा वो बेस्ट रहेगा, कौन सी मशीन कहाँ रखी जाएगी वो कैसे डिसाइड करा जाएगा। तो आप जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप करो, बट हर एक चीज़ को करने के लिए ना एक बेस्ट मेथड ढूंढ लो ताकि आपकी कॉस्ट और टाइम सेव हो। Fine. So this will require a lot of experimentation to find out the best method for every job. So yes, it is little bit time consuming, but in future it will save you a lot of time and it will save you a lot of cost as well if you will do it properly. So this ends your method study given by Taylor.